Professor Sheikh Bilal Ahmed, currently the Regional Director of Regional Facilitation Center, which is under the Ministry of Ayush. And the sir will deliver the lecture now, and I hope you will learn, you will not just only listen to him, you will interact also. Because sir have an immense experience in the field. Sir, please start the lectures. He has been HOD entomology for a long period of time. He has headed Research Center for Quality and Residue Analysis. He has headed our ETC Center in Malangpura for a long period of time. He has held very important assignments of the university, and is, based on his experience, he has now taken leadership of this Regional Facilitation Center. He is an entomologist, but based on his passion and his love towards agriculture and allied sectors, he has done a wonderful job during the last 2-3 years. So we are humbled to have him here, and I am personally, sir, thankful to you for coming to this place and giving some inputs from your knowledge bank to our participants. Thank you very much, sir. Professor Ishfaq sir, Head Professor Farooq sir, dear participants, thank you very much, sir, for giving me an opportunity to be here today for discussing something about the medicinal and aromatic plants. English में okay or Hindi or Urdu, whatever you say. No. They are all graduates at Abu Dhabi, Okay. postgraduates. So first of all, I'll tell you, I am coming from Regional Facilitation Center. So this is, there are such 6, in fact there were 7 centers, but now we have got 6 centers in the country. One of the centers is in the northern region 2nd, which is for Jammu, Kashmir and Ladakh. That is our territorial jurisdiction. Another center is northern region 1, that's for Himachal Pradesh, Punjab and Uttar Pradesh. So likewise there are 6 such centers which are catering the entire country. What is our principal mandate? That is the production of the quality planting material of the medicinal plants, and then give the awareness, develop skills in conservation and cultivation and multiplication, nursery management of the medicinal plants. So one of the important things, important jobs that we have been assigned is to go for the production of the quality planting material. Why? You might have heard from many people, these have been coming from the natural niches or ecological zones, these medicinal and aromatic plants. Forest was the main source from which these medicinal plants used to be harvested. But what has happened is the wanton harvesting, awara, wanton means awara harvesting, जो लोग गए जिस तरह से मर्जी है उस तरह से उन्होंने जंगलों को लूटा. ठीक है, उनको परमिशन था किसी हद तक उनको हार्वेस्टिंग करने की, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने रैम्पेंट वो कर दिया, डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग कर दी, और विद द रिजल्ट व्हाट हैपेंड वाज जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स थे हमारी इकोलॉजिकल जोन्स में, वो बाय एंड लार्ज खत्म हो गई. सम ऑफ देम वर थ्रेटन्ड, सम ऑफ देम हैव बिकम एक्सटिंक्ट. कुछ प्लांट जो है आजकल जिनका हम नाम सुनते हैं बट दे आर नो मोर अवेलेबल इन देयर नेचुरल इकोसिस्टम्स. तो इस तरह से प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इन मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स को अब जरूरत है कल्टीवेशन की, नॉट टू गो एंड टेक देम फ्रॉम द वाइल्ड, क्योंकि वाइल्ड में अभी खत्म हो गए हैं. दैट इज व्हाई प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो हमारा ये फोकस रहेगा इन दिस, जो हमारा टॉपिक दिया गया है, दैट इज शिफ्टिंग टू ग्रीन इकोनॉमी, हाइप और होप फॉर एंटरप्रेन्योर्स. ये ऐसी ही बातें चल रही है या कोई उम्मीद है इसमें?
So we'll be talking about that, and I will tell you the opportunities that we have got. किसमें कहाँ पर आप वेंचर कर सकते हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम आपको बताएंगे अभी, ये कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं. These are very common among us. Everybody knows about them. लेकिन हम ऐसे ही इनको इग्नोर करते रहते हैं. But there are opportunities in them. That is what I will be focusing. ये जो है, ये picture that you are seeing in the background, ये कुकरनाग की picture है, a wonderful picture. ये जो है इसमें जो है ना आर्बोरियम कैम्पेन्युलेटम इसको कहते हैं, और इसको कश्मीरी में यंग पत्र कहते हैं, और इसको जो है ना ऐसे ही पढ़ाई की ब्यूटीफुल प्लांट्स है, लेकिन ऐसे ही छोड़ा गया है इसको. उत्तराखंड में इसको क्या करते हैं, दे मेक शरबत आउट ऑफ इट, ठीक है ना, और वो मार्केट में बिकती है, बड़े चाव से लोग पीते हैं, एंड वेरी न्यूट्रिशियस है वो. दैट इज what we can do, we can also extract. और अगर इसको लिया जाएगा, in the beginning of this slide I am telling you, कोई इसी प्लांट को ले जाएगा, इसी के फ्लावर को ले जाएगा, यहाँ से इसकी चाय भी बन सकती है और इसका जो है शरबत भी बन सकती है. So कुछ नहीं करना है, only flowers को right time पर pluck करके जो है लेना है, and you can develop a product out of it. आप कह रहे हैं ना, where is there any opportunity? इसी स्लाइड में ये मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक opportunity है, इसको आप टैप कर सकते हैं. Next slide. Can you do it from there? Okay. Now, is there any hope? Is it a hype? I don't know. Huh? You will understand it yourself. But is there hope? Surely, I do believe there is a hope in medicinal and aromatic plants. Let us discuss that. Let us see why is the hope. Okay. Now, first of all, I was telling you that we belong to Ayush. Ayush, everybody might have heard about Ayush. But basically, it is always in your exams, also in your interview, you will be asked what does Ayush stand for. So I thought that I will tell you. There are Ayurveda. Basically, these are the systems of Indian medicine. It can be Ayurveda, it can be yoga and neuropathy, Unani, Siddha and homeopathy. If you see the word Ayush, आप जानते हैं ना, हिंदी में जब आप कहते हैं कुछ सीरियल्स भी देखेंगे ना, वहाँ बुजुर्ग जो कहते हैं वो कहते हैं आयुष्मान बाउल, है ना, वो बड़ा कहते हैं किसी को हमें जरा ये कर लीजिए, वो कहते हैं आयुष्मान बाउल. आयुष मीन्स एज, आयुष्मान बाउल आपकी लंबी उम्र हो. तो आयुष जो है ना, इसका मतलब भी हो ऐसे ही है कि उम्र आपकी बड़ी हो जाए ना. उसमें आयुर्वेदा जो है, कई तरह के सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, लेकिन हमने आयुर्वेदा को हाईलाइट किया है बिकॉज हम इसमें ये सिस्टम जो है ना, इस सिस्टम में आपको बताएंगे कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं. देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन यूनानी मेडिसिन, सिद्धा आल्सो इन होम्योपैथी. ये जो है सिद्धा जो है ये साउथ इंडियन है, ठीक है, साउथ में इसका चलता है, पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु इन्होंने इसको डेवलप किया है, वहाँ इसका प्रैक्टिस किया जाता है. इसी तरह से यूनानी मेडिसिन इज़ वेरी कॉमन. हमदर्द वगैरह जो है आप सुनते हैं उनके मेडिसिन, एंड दे आर बेसिकली यूनानी मेडिसिन दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस स्पेसिफाई होता है. लेकिन आयुर्वेदा जो होता है इट्स अ कंप्लीट सिस्टम, ठीक है. इट गिव्स यू समथिंग व्हिच गिव्स अ वाइटलिटी टू द बॉडी. आपको एक इम्यूनिटी बूस्टिंग देता है, एंड इट गिव्स यू ए कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट द कैंसर्स, ठीक है. तो आयुर्वेदा को आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं. यानी यूनानी मेडिसिन आप लीजिए, यूनानी को आप करिए जब ट्रीटमेंट होगा डिजीज वगैरह का उसका. आयुर्वेदा को आप अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं अदर देन मेडिसिन, ठीक है. इसलिए हम इस पर फोकस करेंगे. आयुर्वेदा में क्या है, आयुर्वेदा आप मेडिसिन इसको यूज करेंगे, बट यू कैन यूज आयुर्वेदा इन डिफरेंट वेज. इन आयुर्वेदा फॉर फूड फॉर एग्जाम्पल, that is what I will while I will be focusing, and I will tell you where are the lot of opportunities there. Next slide. Next. Yeah, recently there was an Ayurveda day. इंडिया में जो है ना आयुर्वेदा डे मनाया गया, और आयुर्वेदा डे का स्लोगन था आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ. वन हेल्थ यानी आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे. Ayurveda for everyone
on every day. ये कैसे हो सकता है? How is it possible that Ayurveda can be every day, everywhere? ये तो तब possible होगा जब Ayurveda आप day to day life में use करेंगे. What is the way of using Ayurveda every day? वो है खाने की सूरत में, ठीक है ना? अगर आप फूड में खाएंगे वो चीजें तो आयुर्वेदा का बेनिफिट आपको मिलेगा. वो जो स्लोगन जो है ना, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, जो है वो सही तरह से जस्टिफाई हो जाएगा. नाउ आयुर्वेदा का अक्सर जब हम बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट आयुर्वेदा, तो हमें आता है कि ह्यूमन हेल्थ के बारे में, ठीक है. बट आयुर्वेदा कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज. हम इसको कहते हैं, हमने इसको कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको मिलेंगे नहीं, कहीं कुछ हमारी अपनी है. जैसे मानव आयुर्वेदा है ना, इंसानों की हेल्थ के बारे में जो है मानव आयुर्वेदा, या पशु आयुर्वेदा, जानवरों के लिए जो आयुर्वेदा का क्या रोल हो सकता है. एंड देन वृक्ष आयुर्वेदा. वृक्ष मीन्स पौधे, ट्रीज या प्लांट जो होते हैं, उनका आयुर्वेदा आप जानते हैं. और इसमें जो है अपॉर्चुनिटी, हर एक में अपॉर्चुनिटी है. मानव आयुर्वेदा ह्यूमन हेल्थ के लिए अपॉर्चुनिटी है. पशु आयुर्वेदा के बारे में आपको बताऊंगा. रिसेंटली हम जम्मू गए थे, तो जम्मू में आगरा, ये जो है ना विजयनगर के पास एक हम फॉरेस्ट में गए, एक गांव में गए, तो वहां पर हमने देखा, वहां पर प्लांट है, दे कॉल इट गाजर मूला, वन ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट. तो हमने इसको देखा फ्लावरिंग स्टेज में. तो वहां गांव वाले इतने थे, मतलब क्यूरियस थे, उसको टच भी नहीं करने देते थे. तो हमने पूछा, भाई क्या बात है, ऐसा क्या है कि आप इसको, हम आपको यहाँ पर आए हैं आपकी हेल्प करने के लिए. उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन हम इसको पूजा करते हैं, इस प्लांट को. मैंने कहा क्यों पूजा करते हो? कहा ये हमारी गाय के लिए, जब हम इसको ये खिलाते हैं, उसकी मिल्क प्रोडक्शन जो है ना बढ़ जाती है. मिल्क प्रोडक्शन जो है इसलिए हम इसको नहीं देते हैं. लेकिन हम भी कहाँ मानने वाले थे, हमने 4 पौधे ले लिए, तो उसको फिर यहाँ पर लगा दिया, और अल्लाह के फजल करम से वो चल रहे हैं. तो दैट इज वंडरफुल. दैट इज हाउ यू कैन डू जस्टिस टू द पशु, यानी एनिमल्स को आप जस्टिस कर सकते हैं. इसी तरह से वृक्ष आयुर्वेदा है. आजकल हम बहुत कहते हैं पेस्टिसाइड इसका बड़ा है, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज हैं, ह्यूमन मतलब जो इकोसिस्टम है वो खत्म हो गया. तो वृक्ष आयुर्वेदा जो है, इन प्लांट्स को, इन मेडिसिनल प्लांट्स को आप यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स, जिनको एज बायोपेस्टिसाइड्स और बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स आप इनको यूज कर सकते हैं. दैट इज, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है. आप जानते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बोटेनिकल पेस्टिसाइड पूरा जो होता है नीम का जो होता है, पूरी कंट्री में कहते हैं नीम का पौधा, उसको यूज कर लेते हैं. आपके पास हजारों पौधे यहाँ हैं कश्मीर में, जिनको, जो नीम से बेटर हैं, लेकिन क्या है, हम करते नहीं हैं, हम कुछ करते नहीं हैं. अगर इसमें कुछ लोग करेंगे तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और दैट कैन आल्सो प्रोवाइड यू रेवेन्यूज. तो ये तो है कुछ बेनिफिट्स हैं. आई विल नॉट फोकस ऑन दिस. जैसे आयुर्वेदा के बेनिफिट्स क्या है, मेंटल हेल्थ, इंप्रूविंग डाइजेशन, कई बेनिफिट जो होते हैं. तो इनको आयुर्वेदा को हम, इस प्लांट्स को, इस डाइवर्सिटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं. आगे नेक्स्ट स्लाइड. या ये एक पिक्चर है, आप जरा इसको देख लीजिए. ये एक बाबा है इसमें, ठीक है, और इसके अराउंड जो है ना, ही इज बीइंग सराउंडेड बाय लॉट ऑफ यूरोपियन लेडीज, ठीक है. आप कुछ देखिए, बताएंगे इसमें क्या खास बात है. कैन एनीबॉडी गेस? मैंने ऊपर लिखा है व्हाट आयुर्वेदा कैन डू. ये आयुर्वेदा आपको क्या कर सकता है. चलो, इसमें इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू गेस. नहीं, ये दिखाइए. ये जो ये बाबा है ना, ये भगवान दास जी हैं, माउंट टॉबो में रहते हैं, और इनकी एज जो है ना 103. ही इज 103 years old. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, व्हाट आयुर्वेदा कैन डू. अब पूरी दुनिया में लोग इसको देखने के लिए आते हैं, इसके साथ पिक्चर उठा लेते हैं. और राज क्या है इसका? इसका राज यही है, ही हैज, बचपन से उसने कहा कि he has not been taking anything except these herbs. ये एक राज है इसका. तो this is what Ayurveda can do. That's what I have said. Now, food status. अब हम आज आएंगे आयुर्वेदा के बारे में, और मेडिसिनल प्लांट, अब मैं जो एरोमेटिक प्लांट्स में, वो अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ प्रोवाइड कर लेते हैं. आप देखिए, there are about 80,000
प्लांट स्पीशीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है, फूड फाइबर वगैरह के लिए इसमें 10,000 जो है एडिबल है, 10,000 एडिबल है। लेकिन अगर आप देखिए 4 क्रॉप्स, देयर आर ओनली 4 क्रॉप्स जिनमें तकरीबन 60% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स राइस, वीट, मेज और पोटैटो से आते हैं, और बाकी कुछ थोड़ा जो है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। लेकिन मेडिसिनल प्लांट्स आर अंडर यूटिलाइज्ड। हम ये कह रहे हैं मेडिसिनल प्लांट जो है ना, दे प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी टू सी दैट दीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन द मेन डाइट। तो यही ये काम है, यहाँ से हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट या तो यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट डाइवर्सिटी, मैंने बताया आपको, दे कैन बी यूज्ड इन मेडिसिन, इन आयुर्वेदा, यूनानी ऑन सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स, और दे कैन बी यूज्ड एज फूड। इनको फूड मतलब इस्तेमाल किया जाता है, ये मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स को, इनकॉर्पोरेट देम इन द डेली डाइट, और एंड दैट विल इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब आपको पता है ये जो हम अक्सर बात करते हैं ना फूड सिक्योरिटी की, फूड सिक्योरिटी हम ये कहते हैं कि फूड फॉर एवरीवन, इजीली अफोर्डेबल टू एवरीवन, और इसके साथ जो है इंपॉर्टेंट बनता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फूड तो मिले लेकिन फूड के साथ साथ न्यूट्रिशन भी मिले, और मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको एनर्जीज भी देते हैं, कैलोरीज भी देते हैं, और दूसरा जो है वो आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर लेते हैं, और इनको आप यूज कर सकते हैं एज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल रेडी टू ईट पिकल्स आप बना सकते हैं, पिकल्स की मार्केटिंग आप कर सकते हैं इनकी, मेडिसिनल प्लांट्स की। जैम, जूसेस और चिप्स भी बना सकते हैं। ये जो एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूँ यहाँ, पिकल्स, जैम, जूसेस एंड चिप्स, ये हमने बनाए। अभी हम आपको इनके पिक्चर्स भी दिखाएंगे, दैट यू विल सी दैट देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर देम। इनको हर्बल टीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल पता है ना, लोग कहते हैं ना हर्बल टी है कुछ एक क्या कहते हैं इसको, ग्रीन टी अवेलेबल होती है, बड़ी कॉमन होती है। लेकिन अभी आप हैरान हो जाएंगे, हमने 8-9 किस्म की चाय जो है ना खुद यहाँ अपनी मेडिसिनल प्लांट से तैयार की है। सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। और आपको पता है इन हर्बल टीज की कितनी डिमांड है, इनमें क्या करना है, थोड़ी वैल्यू एडिशन करके इनको मार्केट में लाना है। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू, वेयर यू कैन फाइंड एन अपॉर्चुनिटी to see them. Cookies, cakes, breads and mayonnaise. तो मेयोनीज तो आप खाते हैं ना, अक्सर आप जाते हैं तो इनमें ये बर्गर्स खाते हैं, ये पिज़्ज़ाज खाते हैं, पता नहीं क्या और भी, और वहाँ पर जो मेयोनीज होती है वो कुछ और होती है। हम आपको हर्बल मेयोनीज बता रहे हैं, वो लीजिए आप, और जब हम बताएंगे आपको किस प्लांट से ये आती है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी इट। इसी तरह से एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल की बात हम कर रहे थे कल, शायद हम आई वाज ऑनलाइन, मैंने बताया था देयर इज एन अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली फॉर लेवेंडर, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिमिशिया ऑयल आल्सो, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर डेचेटस ऑयल। अब इसका लेवेंडर ऑयल का जो मैं बता रहा था 10,000 तक इसका रेट होता है पर लीटर का, इसका जो है आर्टिमिशिया ऑयल का है 20 से 25,000 तक जाता है लीटर, और डेचेटस का है तकरीबन 16 से 17,000 का आता है। तो ये जो है ना अपॉर्चुनिटी, लेवेंडर 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 के पीछे क्यों, देयर आर सम अदर प्लांट्स व्हिच कैन बी इजीली रेज्ड। तो और सबसे बड़ी बात है, हम जब बिगिनिंग में बता रहे थे आपको ग्रीन इकोनॉमी कह रहे थे, मेडिसिनल और प्लांट्स में ये शिफ्टिंग टू ग्रीन इकोनॉमी नहीं है, इट इज ऑलरेडी ए ग्रीन इकोनॉमी, क्योंकि मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट जो है ना, इनको रेज नहीं किया जा सकता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनके नहीं हो। अगर ये हो गया तो फिर ये इसमें कोई नहीं होता। तो नेचुरली जो है ना सदियों से इनको अगर ग्रो किया जाता था, दैट वाज विदाउट पेस्टिसाइड्स, विदाउट फर्टिलाइजर्स और विदाउट हर्बिसाइड्स वगैरह जो है, इनके बगैर इनको इस्तेमाल किया जाता। सो देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी एंड देन यू कुड डेवलप देम इनटू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हर्बल क्रीम्स हमने यहाँ लेवेंडर क्रीम्स बनाई हैं, सोप्स बनाई हैं, परफ्यूम्स बनाई हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सो फार एज। अब लोग जो हैं, you might have heard some lectures from outside, उन्होंने किया है दोज प्लांट्स का जो हमारे यहाँ नहीं होते हैं। तो अगर आपको इसमें वेंचर करना है, यू हैव टू सी कौन से लोकल प्लांट्स हैं हमारे जिनमें हम ये वेंचर कर सकते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो ये प्लांट जो है कॉमन मेडिसिनल प्लांट जो है, आप देख लीजिए साइंटिफिक नाम दिए हुए हैं, पोर्टुलिका है, पुर्सुलान नन्नर है, डेंडलियन, शीप सोरल है, स्टिंगिंग नेटल है, स्वीट फ्लैग, रुबार्ब है, फारम गुग्ज जेरूसलमा, हेंग है, यंग पतली है, जर्मन
चमोमाइल है, वाइल्ड रोज हिप्स है, बनफशा है। दीज आर वेरी कॉमन प्लांट्स जो हमारे इकोसिस्टम, हमारे कश्मीर में पाए जाते हैं, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ लेट मी गो एंड डिस्कस अबाउट दिस पुर्सलान और नुन्नर या पोर्टुगला और रशिया। कॉमन होता है ना, हर जगह होता है, आप देखिए इट इज अवेलेबल। अब आप इसके बेनिफिट्स देखिए, तो इसको इट इज अ लैक्सेटिव, डायूरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी अल्सरोजेनिक एंड एंटी, इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं इसमें। और फिर आप देखिए लीव्स आर कुक्ड, नुन्नर के हम लीव्स पकाते हैं। अब हमारे पकाने का तरीका जो है हो सकता है साइंटिफिकली कुछ डिफरेंट होगा। अगर इसमें कोई चीज़ भी होगी शायद हमें पकाना भी नहीं आता होगा, हम उसको मिर्ची मसाला इतना डालते होंगे शायद उसका वो खत्म होता होगा। बट साइंटिफिकली जो है इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ना, आप जो है ना किसमें पाया जाता है मैक्सिमम? आप आमतौर पर लोग कहते हैं वालनट में, कहते हैं वालनट में या फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसमें देखिए ओमेगा 3 14 टाइम्स हायर देन वालनट, 14 टाइम्स हायर देन वालनट। पोटेशियम को देखिए 3120 मिलीग्राम पोटेशियम। आपको देयर आर टू इंपॉर्टेंट आयन्स जो होती हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम तो हम कॉमन साल्ट से लेते हैं, सोडियम क्लोराइड रोज खाते हैं, सब्जियों में डालते हैं, चाय में डालते हैं तो हमें मिलता है। लेकिन पोटेशियम आपको कभी नहीं मिलता है। पोटेशियम तो फ्रूट में होता है, हम कश्मीरी तो ओवरऑल खाते नहीं, वी प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फॉर अदर्स। नॉर्मली हमारी आदत ही नहीं है ना फ्रूट खाने की, तो इसलिए हमें वो भी मिलता है। और एक महीना होता है जब हम रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं तो उस वक्त हम खजूर खाते हैं, उसमें हमें पोटेशियम मिलता है। ठीक है, बाय एंड लार्ज हमें पोटेशियम नहीं मिलता है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जहाँ से आपको पोटेशियम मिल जाएगा। और 20,000 बीटा माइक्रोग्राम्स ऑफ बीटा कैरोटीन, 7 टाइम्स हायर देन कैरोटीन। गाजर आप खाते हैं लेकिन इसमें 7 गुना ज़्यादा होता है। इसमें विटामिन ई 6 टाइम्स हायर देन स्पिनच। पालक में जो विटामिन ई होता है तो इसमें 6 गुना ज़्यादा होता है। अगर आपको एडिबिलिटी रेटिंग डाल दीजिए, मेडिसिनल रेटिंग 4 आउट ऑफ 5 या 8 आउट ऑफ 10, वेरी हाई है ना। तो इसमें जो है मेडिसिनल रेटिंग, तो इसको जो है एक अपॉर्चुनिटी होगी। इसको आप क्या कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटीज इन इट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पैकिंग कर सकते हैं। मैं अब ये भी आपको कुछ पिक्चर दिखाऊंगा। अमेरिका में यहाँ एक वीड है, हमारे यहाँ वहाँ भी है, ठीक है। हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, उन्होंने पैकेट्स किया हुआ है, पैकेट्स किए, सुपर मार्केट्स में वो अवेलेबल है और वहाँ लोग जाते हैं, दे टेक दैट, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज़ वेरी रिच, हमारा इतना जो है इट इज़ सो रिच, इट कैन बी ऑल्सो पुट इन दोज पैकेट्स रेडी टू ईट फूड्स। जैसे मैंने बताया बिगिनिंग में, इनको जो है ना रेडी टू ईट फूड्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। या दिस इज हेलियंथस ट्यूबरोसिस, जेरूसलम आर्टिचोक, कश्मीरी में इसको फारम गोगजी भी कहते हैं। इसको जब हम छोटे थे, वी यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ देम ड्यूरिंग विंटर। और इन क्यों विंटर में क्यों खाते थे, तो एक तो वो जो स्ट्रीम्स होती थी ना, जहाँ ये बैंक्स के साथ, उनमें पानी खत्म हो जाता था, एक तो इजीली एक्सेसिबल हो जाता था। दूसरा जो है विंटर में साइंटिफिकली इनमें जो है ना शुगर कंटेंट जो है ना ज़्यादा हो जाता है। शुगर कंटेंट जो है ना, शुगर की ब्यूटी है, इट इज़ नॉट ग्लूकोज, इट इज़ नॉट ग्लूकोज, स्वीटनेस इसमें आ जाती है, नॉट द शुगर। तो इनको जो है दे आर गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। अभी मैं बता रहा था शुगर होता है, तो शुगर इतने मीठे होते हैं लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ट्यूबर्स, इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी रवा भी खा सकते हैं, सफाई कर सकते हैं इनको, और इनको जो है अदरवाइज भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। दे कुड बी कुक्ड एज दे कैन बी बल्क सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। अब आप इनको फैट्स देखिए, मैं दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ। ये आलू की तरह होते हैं, देखिए ना, इनका जो है ना ये प्लेट में रखे हैं, हमारे अपने फार्म के हैं ये पिक्चर्स। और जेरूसलम आर्टिचोक है इसको, या इसको दूसरा इंग्लिश में कहते हैं सनचोक्स भी। तो और पोटैटो का देख लीजिए। अब फैट्स देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। वहाँ पर देख लीजिए 0.2 है, कार्बोहाइड्रेट 17, वहाँ 21 है। लेकिन इसमें जो इनोलिन कंटेंट 30%, उसमें 0.5 है। दिस इज द ब्यूटी। इनोलिन जो है 30% है, इसमें आयरन 18, उसमें 0.3 है, पोटेशियम 400 150। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, किसी चीज का
शुगर के डायबिटीज़ के लिए बेटर होना या खराब होना वो जो है डिपेंड करता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स पोटैटो का 82 है, इसका देख लीजिए 49 है। सो ये दैट मीन्स अगर आप इसको खाएंगे इट विल नॉट गिव यू मच शुगर, ठीक है, इट इज गुड। तो अब इसमें ब्यूटी जो है इनोलिन कंटेंट है। इनोलिन कार्बोहाइड्रेट है, शुगर इट इज अ कार्बोहाइड्रेट बट इट इज अ फ्रुक्टोज, बेसिकली इट्स अ फ्रुक्टोज कंटेंट। तो हमारी बॉडी में यूजुअली कोई एंजाइम नहीं होता है जो डायरेक्टली फ्रुक्टोज को कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज, इसमें थोड़ा ये रिवर्सल हो जाता है। तो इसलिए दैट इज व्हाई तो फ्रुक्टोज जो है ना, अगर किसी को जो है इंजेक्शन फ्रुक्टोज का नहीं देते हैं क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं होता है इनटू ग्लूकोज, को सीधा वो देते हैं। तो इस तरह से क्योंकि ये डायरेक्टली आपको ये शुगर नहीं देता है, इट इज गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, हाउ यू विल डेवलप दिस। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए जेरूसलम चिप्स, हमने इसके चिप्स बना लिए, जिस तरह आलू के चिप्स हैं हमने जेरूसलम के चिप्स बना लिए। और जेरूसलम की चिप्स जो है ना, इनमें एक अपनी एक स्वीटनेस तो है ही फ्रुक्टोज की वजह। फ्रुक्टोज यूजुअली मीठा होता है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज, ठीक है, तो मीठापन तो होता है। हमने एक बार जो है ना एक डब्बा ले लिया वाइस चांसलर को दिखाने के लिए, हमने ये किया, उसने पूरा डब्बा खाली कर दिया। तो मतलब ही सेड इट इज सो वंडरफुल। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी थे, तो बोथ ऑफ देम दे टुक इट। तो यू कैन मेक चिप्स। और ये चिप्स जैसे कोई किसी को डायबिटीज है वो चिप्स खाता है, नहीं खाएगा। हम इसको कहेंगे इसके चिप्स खाओ, यू टेक द जेरूसलम आर्टिचोक के चिप्स खाइए, बिकॉज दे आर गुड फॉर यू। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं अगर आप इसमें करें। मेयोनीज में भी बता रहा था, आप जाते हैं उधर तो पता नहीं किस चीज़ का बनाते हैं वहाँ पर, और इसका भी देख लीजिए। अभी यहाँ आए थे बीस साहब हमारे यहाँ आए थे वडोदरा, तो हमने उसको वहाँ टेस्ट करवाया तो ही लाइक्ड इट। तो ये जो है इसकी मेयोनीज भी बना सकते हैं आप जेरूसलम आर्टिचोक के। और यहाँ पर जो है ना आपके केवी के हैं, यहाँ पर एक होम साइंस का एक विंग भी होता है, दे कैन ऑल्सो डेवलप दीज थिंग्स यू नो। अच्छा, जेरूसलम पिकल्स, इसी के पिकल्स भी बना सकते हैं आप। सो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। अभी आप देखिए क्या है, व्हेन वी आजकल ये प्रोडक्ट जो होते हैं, खासकर ये जो ये पिकल्स हैं, आजकल विंटर में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। तो अगर इस तरह से इनको अभी तैयार किया जाए, फॉर एग्जांपल इनको जो है मार्केट में लाया जाएगा, पीपल विल डेफिनेटली लाइक देम। हमारे पास तकरीबन इस वक्त जेरूसलम जो ओवरऑल जेरूसलम प्रोड्यूस है तकरीबन 7-8 क्विंटल है। क्विंटल हमारे पास इतना है और इजीली ग्रो होता है एंड दे कैन सो मेनी प्रोडक्ट्स कैन बी मेड आउट ऑफ इट। नेक्स्ट अगेन डायरेक्ट सम ऑप्शन है। ये जो है ना कश्मीरी में हम इसको कहते हैं डंडलियान होता है। अब इसको जो है ना यूजुअली इसको कहते थे कि इसको जो है औरतों के लिए बहुत अच्छा होता है। आफ्टर उनकी जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद कैल्शियम लॉस होता है, क्योंकि कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है, 187 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम। इसके अलावा विटामिन ए है, बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। तो अब हमने जो है इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं। ब्रो इसका कश्मीरी में हम या इसको कहेंगे इस तरह से जो है ना, जब कभी इसका ये सब्जी बनाते थे कहते इसमें मुर्गा होना चाहिए, क्योंकि अभी मीट और मुर्गे के बगैर कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है। तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। और हमने इनके फ्लावर से चाय भी बना ली, ठीक है, इनका पुलाव भी बनाया और इनके पकौड़े भी बना लिए। सो दैट मीन्स ये किसी को भी दिया जा सकता है। आजकल जो है ना मतलब देयर कैन बी एनी वैल्यू एडिशन इन देम, और इनको जो है ना अब ये डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर लेते हैं कि इसमें जो है लोग आगे आ सकें। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द ब्यूटी, है ना। ये जो है ना कश्मीरी में सोई कहते हैं, बिच्छू बूटी कहते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, इसमें एडिबिलिटी रेटिंग 5 आउट ऑफ 5, मेडिसिनल रेटिंग 5 आउट ऑफ 5। ऐसा कोई मेडिसिनल प्लांट दुनिया में है ही नहीं जितना कि ये है। इतना खूबसूरत मेडिसिनल प्लांट जो है ये पाया जाता है। देखिए, डायूरेटिक एंड देन ट्रीट्स एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, लोअर्स ब्लड शुगर, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। अगर किसी को आर्थराइटिस वगैरह यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम है तो इसके जो है ना जड़ें इसको दे दो। इसके अगर पानी में इनको उबालेंगे, उसका पानी दे दो, वो सब खत्म हो जाए। इस नॉर्मल ये कोर्स में है। और दुनिया में
अब देखिए विटामिन्स, आप जानते हैं, आपके बायोकेमिस्ट्री का कुछ पता है ना, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं. All the amino fat soluble vitamins and water soluble vitamins are available in. Then minerals, all calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium and sodium, everything is there. अब सबसे बड़ी ब्यूटी है इसकी फैटी एसिड, सच अनसैचुरेटेड फैटी, लाइनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, पामेटिक एसिड, सिटीरिक एसिड, all of them are present in it. और वो ऑयल आपको पता है किसमें होता है? ओलिव ऑयल में. यू आर फाइंडिंग इन दैट, और इसमें ही पाए जाते हैं यहाँ पर. तो इसी तरह से जो होता है, बीटा कैरोटीन इज प्रेजेंट, ल्यूटीन इज प्रेजेंट. अब इनमें हमने क्या किया, पकोड़े ये बनाए इसके लीव्स के, और हमने खिलाया सबको, जितने भी कमिश्नर और सेक्रेटरी आए उनको भी खिलाया, क्योंकि हमने छोड़ा नहीं किसी को. ठीक है. वेट. Okay. Nettle leaf tea, young leaves, or nettle leaf pakoda. These are different things you can make out of it. अच्छा, अब आपको ये क्या है? इसको तो कल्टीवेट करना नहीं है. It is soy अच्छे सोए क्षमुच है ना, मैं ये कहता हूँ अब खाना चाहिए. ठीक है. तो इसको जो है ये अवेलेबल इतनी है, इसको लीव्स इसके कलेक्ट करने, सुखाने हैं, सफाई करके इनको, और उसके बाद आई टेल यू देयर इज अ ह्यूज मार्केट फॉर दिस. और हमें अभी मतलब कुछ जून जुलाई में हमें आई गॉट ए डिमांड फॉर 5 टन्स. देयर वाज रिक्वायरमेंट फॉर 5 टन्स. करना कुछ नहीं है, लेकिन हम चूँकि इसमें खुद बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को हम बताएंगे इसको साइंटिफिकली कलेक्ट कर लीजिए और भेज दीजिए इसको आगे. लोग इसको खरीदने के लिए तैयार हैं. अब इसमें जो है ना, अगर आप देखेंगे ना, इसके नेटल लीफ टी अभी आप गूगल कर सकते, अमेज़ॉन पर भी इसको अवेलेबल है, हर जगह ये अवेलेबल है ये टी. ठीक है. तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं. और हम क्या कर सकते हैं, हमें तो पकोड़े ही आएंगे, तो हमने पकोड़े, पुलाव वगैरह दूसरी चीज़ें इसमें, मैंने कहने का मतलब ये है कि इनको आप यूज़ कर सकते हैं इन यूर डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. और बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी. मैं आई टेल माई चिल्ड्रन, वो मुझ पर हंसते हैं, इस तरह से आप हंसते होंगे, चाहिए. तो इस तरह से वी हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस. ठीक है. तो इसको आगे लेने की ज़रूरत है. नेक्स्ट स्लाइड. बैठिए यहाँ से चलता है इसको. हाँ, इस पर ये बताइए कौन सा ये होता है. ओके. दिस इज एकोरस कैलमस, वाई गंडर, स्वीट फ्लैग इसको कहते हैं. और इसको जो है ना, यहाँ पर इसका ये है, ये इस तरह से ये प्लांट होता है, और इसको आप कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मैंने इसमें ये बताया है, it can be taken as raw also. It makes a palatable vegetable. Inner portion of young stem made into palatable salad. और हिंदू जो है कश्मीरी पंडित से जब उनको जन्माष्टमी होती थी, वो इस एकोरस कैलमस के प्लांट जो है ना थाली में रखते थे. ठीक है. यानी भगवान को भी ये चढ़ाते थे. ये जो है दैट वाज इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑल्सो. आज भी अगर उनको ये जन्माष्टमी कभी होती है तो ये कहेंगे आई सी वाई प्लांट घुसासो, वाई गंडूर भी कहते हैं इसको. एंड इट हैज एन इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी आल्सो. मैं ये भी कह रहा था ना, वृक्ष आयुष पौधों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. तमिलनाडु में क्या होता है, जो ये चावल होता है वहाँ पर एक कीड़ा लगता है, ब्राउन प्लांट हॉपर उसको कहते हैं. और उसको क्या करते हैं, वो इसको इंटरक्रॉप करते हैं, राइस फील्ड के साथ लगा लेते हैं इसको. तो जिस फील्ड में राइस फील्ड में ये लगाते हैं, वहाँ पर वो कीड़ा वगैरह नहीं लगता है. और फिर राइस खत्म हो गई, उसके बाद जो है ना, इसका जो है इसकी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं. यानी हाउ मेडिसिनल प्लांट्स एंड मेन क्रॉप्स कैन ग्रो टुगेदर. तो इसको अगर आप कभी कहते हैं, ये जो कहते थे ना, प्राइम मिनिस्टर स्लोगन था डबलिंग द फार्मर्स इनकम. ये एक तरीका है किस तरह से फार्मर की इनकम डबल की जा सकती है. मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट. ठीक है. और अगर आप कभी हमारे फील्ड में आ जाएंगे, आपको ट्रिपल IM जाना है शायद. ट्रिपल IM का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन वो मेडिसिनल प्लांट्स हमसे लेते हैं. ठीक है.
आप कभी मौका कीजिए, हमारे वडोदरा आ जाइए, हम आपको दिखाएंगे 42 स्पीशीज ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमारी अपनी हैं, ठीक है। तो कभी मौका आए तो आ जाइएगा। हाँ, ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड पंबचालक, रेवंचीनी या रुबान। ये जो है ना, ये अपने फील्ड की पिक्चर है हमारी यहाँ पर। तो इसमें जो ये स्टॉक्स है ना, ये इनको यूज किया जाता है। इसमें नॉर्थ अमेरिका में जबरदस्त इसकी डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। मेडिसिनल तो है ही, आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको डाययूरेटिक है, रूट इज यूज फॉर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल दैट। लेकिन इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है, विटामिन के, विटामिन सी एंड कैल्शियम इज ऑल प्रेजेंट इन इट। तो मैं ये कह रहा था मेडिसिनल प्लांट जो है ना, अच्छा अब इनको जो है ना, ये पिक्चर जो है ना नीचे वाली, ये पिक्चर जो है ना, इनको ऐसे स्टॉक करके जो है मार्केट में लाया जा सकता है। इनका स्टेम जो होता है ना, इसकी डंडी काट दी और फिर इसको लिया जाता है मार्केट में, और इट इज़ सेलिंग वेरी एक्सपेंसिव, इसकी रेट होती है। और हमारे यहाँ काफ़ी प्रोडक्शन होती है जब हम ज़नस्कार की तरह जाते हैं। व्हेन यू गोज टुवर्ड ज़नस्कार तो आपको पहाड़ों में ये काफ़ी होती है। लेकिन ये पिक्चर जो है ना, अपनी हमारी फील्ड की है। हम आजकल ये मानते हैं, कोई मुझे कहता है ये पहाड़ों पर ऊंची जगह होता है, हम मानते नहीं हैं इसको। हम ये कह रहे हैं कि जब हमारी मैदानों में होगा तो क्यों। आप कोशिश तो करो, आप कोशिश करो, कुछ भी हो सकता है। क्या आगे आगे उसको ज्वाइन करवा रही है ना, वो वेट कर रही है दूसरा लेक्चर का। सर आप कंटिन्यू करो, ये हो गया, ये नेक्स्ट। हाँ ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था, ये अरुगुला, गार्डन रॉकेट कहते हैं, क्रालोमोनिया अरुगुला कहते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर जो है ना नीचे वाली, ये पिक्चर हमने इंटरनेट से ली है। ये अमेरिका में इसको ब्रांड किया जाता है पैकेट्स में, ठीक है। अरुगुला वो है। अगर हाँ, आज आप आएंगे ना हमारे फील्ड पर, आज भी ये मौजूद है और वीड की तरह ये ग्रो करता है। इट ग्रोज लाइक अ वीड। व्हाई शुडंट यू कम फॉरवर्ड और इसको जो है प्रॉपर प्रोसेसिंग करके जो है पैक करके जो है सुपर मार्केट्स में यहाँ बेच सकते हैं। पीपल कैन डू इट एंड पीपल आर डूइंग इट। बहुत सारी, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। People do not have awareness about these things, but you people आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो है ना, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इनको डेवलप कर सकते। हमने इसको जो है ना, इस अरुगुला का पुलाव भी बना लिया है, ठीक है। तो इसको पुलाव में भी अगर कभी जो है इसको वेजिटेबल पुलाव जो खाना हो तो इस तरह से अरुगुला को इसमें ऐड कर सकते हैं, इसका पुलाव बना सकते हैं। और आपको देखिए ना, आपको देखिए न्यूट्रिशन देख लीजिए। सबसे पहले फाइटिस ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस उनको होती है जिनको कैल्शियम की डिफिशिएंसी होती है। इट इज वेरी रिच इन कैल्शियम, ठीक है। फिर इसका क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होता है, ये वर्म सूजन जो होती है उसके लिए विटामिन सी। अगर गम्स में आपको जो है ना वर्म हो जाता है ना, सूजन हो जाती है, तो आप इसको खाइए, ये ठीक हो जाएगा। देन विटामिन ए एंड विटामिन के, वेरी रिच। इट इज एन इम्यूनिटी बूस्टर, और इट इज वन ऑफ द प्लांट जिनको कोविड के दौरान जो है ना ये किया जाता था एज एन इम्यूनिटी बूस्टर। हम आपको दूसरा प्लांट ये भी दिखाएंगे। सो इसको यानी अगर आप इनको खाइए, कहने का मतलब ये है, यू ईट दीज प्लांट्स, तो आपको ये नेचुरली ये चीज़ें इम्यूनिटी बूस्टिंग मिल जाएगी, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी हो, एंटीऑक्सीडेंट्स इस पे पाई जाएंगे, एंड देन इट हैज़ एन एबिलिटी टू फाइट मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर्स, ठीक है। कैंसर क्या होता है? कैंसर हर एक में होता है। इट इज़ द एक्टिवेशन ऑफ द सेल, ठीक है। और ये क्या कर लेते हैं, ये इसको डीएक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेशन से रोक लेते हैं। दैट्स हाउ दे हेल्प इन कैंसर जो है ना डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। ये देखिए, दिस इज अ बकवीट, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर यू मे हैव हियर आल्सो। थोड़ा इसमें यू हैव कल्टिवेटेड हियर। ये बकवीट जो है, इसको कश्मीरी में त्रोम्ब कहते हैं, त्रोम्ब, या इसमें अंग्रेजी में कटूट कहते हैं, और डोगरी में इसको ध्रुव कहते हैं, ध्रुव। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो हिंदू इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर देयर पूजा में, नवरात्रा में इसको बड़ा इस्तेमाल कर, इसके बगैर नहीं चलेगा। इनको खरीदना है, एक पैकेट तो खरीदना है। अब देखिए पूरे हिंदुस्तान में हर एक को एक पैकेट खरीदना है, कितनी डिमांड है। लेकिन हमको तो पता नहीं है, हम समझते हैं त्रुम्ब है, वो पता हो। अब इसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड देख लीजिए। इसको गुलिटिन बकवीट में 0,
और इसमें आपका वीट जो होता है 14 ग्राम्स होता है। ग्लूटेन की से इतनी बीमारियां होती है हमारी गट स्टमक में, और इसको बकवीट को लीजिए, इट इज़ ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन की क्या ये है कैपेबिलिटी, इससे जो है डफनेस आ जाती है, रोटी बन जाती है अच्छी। लेकिन इसमें आप वो रोटी उस तरह से नहीं बनाएंगे, लेकिन आप इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लीजिए, इसकी अच्छी रोटी बन सकती है, इसकी अच्छी परांठा बन सकते हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। रूटीन 270 उसमें 0। दिस इज वेरी गुड, रूटीन इज वेरी गुड फॉर वेमेन ऑल्सो। तो इसलिए बकवीट इज अ परफेक्ट फूड, और इसमें इनोलिन भी होता है, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है बकवीट की रोटी। अभी हमारे विश साहब ने 2-3 किलो ले लिए, कहा मुझे ये खाना है, तो हमने उनको ये आटा दे दिया। और लोगों को ये अक्सर ये परेशानी होती है, जैसे इसका आटा कैसे बनता है, तो ये आटा ऐसे ही बनता है जैसे नॉर्मल मशीन में बनता है, हम उधर ही लेते हैं, वहीं से आटा बना लेते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत उसमें है नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए हमने इसमें प्रोडक्ट्स डिफरेंट बनाए। अब देखिए ये जो है ना ऊपर बकवीट ब्रेड, दूसरा जो है वो जो है ना उधर देख लीजिए पराठा बनाए हैं इसके, मफिन्स बनाए हैं इसके, इधर से हमने केक्स बनाए, वॉलनट बकवीट केक, ये है, ये कुकीज वगैरह हैं, डाइवर्स कुकीज। तो देखिए अगर आप इन चीज़ों को बनाएंगे, एक सिंपल सी क्रॉप है यहाँ पर, और आजकल इसको कहते हैं दिस इज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। बकवीट का बड़ा रोल है इसमें। तो लेकिन बातें करना जो है अलग होता है, एंड देन प्रैक्टिकली टू डू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको करेंगे, इसको आप बताएंगे कि ये बकवीट जो है ना, बकवीट के प्रोडक्ट जो है दे आर गुड फॉर द ह्यूमन हेल्थ, दे आर गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स, तो इनका मार्केट जो है बहुत अच्छा होगा। तो ज़रूरत है इसमें आने की, ठीक है। तो ये आज हमने ये प्रोडक्ट इसलिए बताए यहाँ आपको, ताकि आप लोगों को पता चले अपॉर्चुनिटीज़ की, इसमें हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है। और बकवीट का हम बताएंगे, हमने यहाँ पर 15 किलो सीड लाया था करगिल से, इट वॉज नॉट बीइंग ग्रोन हियर। तो अब हमारे पास तकरीबन 10-15 क्विंटल हैं सीड इस वक्त अवेलेबल। इतना सीड जो है इसका हमारे पास आ गया, और अब हमें जम्मू में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑलरेडी। तो वहाँ भी हम सोच रहे हैं कि वहाँ भी इसको कल्टीवेट कराएंगे लोगों में। आप लोग भी आना चाहेंगे फॉरवर्ड, तो यू विल आल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू। वन ऑफ द एक्सेलेंट कामिंग टीज इन द वर्ल्ड, ये चाय जो है ना इसकी बनती है, और ये हमने इसमें चाय बना ली है, और इसमें एंजाइटी जो है वो खत्म हो जाती है। और कहते हैं अक्सर शाम को आप पिया कीजिए, जब आपको दिन में थकावट होगी, परेशानियाँ होगी, शाम को इसका 1 कप सोने से पहले पी लीजिए, तो आपकी वो एंजाइटी दूर हो जाएगी। और इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डिमांडेड टी इन द वर्ल्ड। तो ये हमारे पास है, हमारे फील्ड में भी है। तो नेक्स्ट हाँ, ये हमें कुछ वाइल्ड रोज हिप्स जो है, आज आप देख रहे हैं गुलाब जो है ना होते हैं वाइल्ड में, तो होते हैं उनके अल्टीमेटली जब गुलाब खत्म हो जाते हैं तो उनके वो बन जाते हैं वो वाले, ठीक है ना। ये हम खाया करते थे छोटे छोटे। अब इनमें जो है ना इनसे आप जैम बना सकते हैं, इनमें आप जूसेस बना सकते हैं। दे आर इम्यूनिटी बूस्टर, इनसे जो है ना इम्यूनिटी आ जाती है, इट फाइट्स अगेंस्ट द मनी डिजीज। तो इसमें जो है ना इनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, इसमें भी कुछ कल्टीवेशन नहीं करना है। आजकल मतलब थोड़ा 10-15 दिन पहले आपको जाना था, और इनको जो है ना सड़क पर किसी भी जगह जाओ तो इनको कलेक्ट करके ले आओ। कलेक्ट करके जो है ना यू कैन कन्वर्ट देम इनटू जूसेस एंड यू कैन कन्वर्ट इनटू जैम्स एंड अदर थिंग्स। तो इसको आप कर सकते हैं, और इतनी बेनिफिट्स हैं। और ये जो है ना अब इसमें रिच इन विटामिन ए एंड के एंड पोटेशियम, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, इसमें जो है ना इतने बेनिफिट्स हैं। तो इनको ऐसे क्यों नहीं लाया जाए, जहाँ आप एप्पल का जूस पीते हैं ना वो सड़े हुए, आप कोई यहाँ से अच्छा आप लोग कहाँ से, अनंतनाग से भी होंगे, किसी फ्रूट एरिया से। हाँ, वहाँ जो होते हैं ना वो फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं जो बागों में वहाँ पर गिरते हैं ना, उन्हीं को वो उठाकर जो होते हैं आमतौर पर वो फैक्ट्रीज में भेज के उसी का जूस बना लेते हैं। सड़े हुए फ्रूट वगैरह हुए फिर हम पीते हैं। तो व्हाई नॉट डे दीज, इनको लीजिए। एक तो ये मेडिसिनली बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको इन्वेस्ट कुछ करना ही नहीं है ना, आपको उससे बाग वाले से खरीद के कुछ लोअर प्राइस पर लेना है, कुछ लेना, आप जाइए खुद ही कलेक्ट कर लीजिए एंड मेक आउट दी। और इनकी प्रोडक्शन आई टेल यू इट्स अ ह्यूज प्रोडक्शन इज देयर। ये खुद ही वाइल्ड में ग्रो करते हैं, सड़कों पर
सड़कों पर रखते हैं, एंड यू कैन मेक दीज थिंग्स. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. अब आप इसको हम पॉपुलराइजेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स में कुछ चैलेंजेस हैं, आगे चलिए. हम ये कह रहे हैं कि अब ये जो है ना, दिस इज द वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड क्या है? इनके लिए जो है ना फूड फेस्टिवल्स होने चाहिए, हर्बल फूड फेस्टिवल्स, ताकि आप लोग भी देखें. जब आप देखेंगे ये जो है ना, हंद का पुलाव है, सोए के पकोड़े हैं, ठीक है ना, रोज़ के हिप्स का अचार है, ठीक है ना, जेरूसलम आर्टिचोक का मेयोनीज है, तो ये आप देखेंगे. और इनको फूड फेस्टिवल में जब आप इनमें देखेंगे, तो हमें ये प्रोग्राम है इंशाल्लाह अगले साल जो है ना, हम एक बड़ा फूड फेस्टिवल करने जा रहे हैं. तो उसमें भी ओपन इन्विटेशन होगा सबको, आप आइए एंड जॉइन अस. नेक्स्ट. आई वाज टेलिंग यू डिफरेंट टीज. ये देखिए डिफरेंट हर्बल टीज, रोडोडेंड्रॉन टी, वेरोनिका टी, I mean बनफशा टी, डलबर्जिया टी, बोगनविला टी, मुश्कबाला टी, कैमोमाइल टी, नेटल लीफ टी, ये सब हमने बनाए हैं, पिए भी हैं, ठीक है. दे आर वेरी गुड रियली. और जब हमने कुछ चाय बनाई, जैसे इसका जो है वेरोनिका फ्लावर टी, जो बड़े इसमें पंडित हैं हर्बल्स के, जब हमने उनको बताया, मैंने कहा हमने आज तक ये सुना नहीं है, वी हैव मेड इट है. तो इसी तरह से डलबर्जिया लीफ टी. डलबर्जिया जो होता है शीशम होता है, शीशम. इसकी लकड़ी, इसकी वाई इज डलबर्जिया फेमस? डलबर्जिया इज फेमस बिकॉज इसकी लकड़ी जो है हार्ड होती है और उसको बड़ा इसकी कीमत आ जाती है. लेकिन डलबर्जिया लीफ का जो है ना चाय भी बनती है. और इसमें जो है ना, डलबर्जिया इज वेरी रिच इन कैल्शियम, ठीक है ना. तो इसमें कई दवाइयाँ बनाई हैं, तो इसकी चाय आप आसानी के साथ पी सकते हैं. सो दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन यूज हर्बल मेडिसिन्स फॉर earning a livelihood, for developing products and for bringing them in the market. Next. Let me take you ये जो है ना, these are different opportunities, आपको मैंने बताया. अब आप देखिए, लेकिन हम आप कुछ अपने फील्ड की पिक्चर्स दिखा रहे हैं, वो आप देख लीजिए. ये जो है हमारा फील्ड है वडोदरा में, और जहाँ पर हमने मेडिसिनल प्लांट्स का क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है वो बना लेते हैं. लेवेंडर है आपका ये, और ये दिस इज आर्टिमिशिया है. देयर आर सो मेनी. नेक्स्ट है, दिस इज अर्नेबिया बेंथेमी. इसको जो होता है वन ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट्स होता है. तो ये हमारे पास होते हैं, हमारे पास ही है और किसी के पास नहीं है, कश्मीर में किसी के पास नहीं, ठीक है. और हमारी फॉरेस्ट्री में कुछ स्टूडेंट्स काम करते हैं, वो कभी कभी हमारे पास आते हैं, सर हमें ये दीजिए. ये जो है ना इग्निशिया पर्पोरिया, दिस इज द इट इज यू विल फाइंड इट इन द बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका. उनका लोगो है ये प्लांट. दिस इज द वेरी हाईली रेटेड इम्यूनिटी बूस्टर प्लांट. तो इसको जो है इसमें काफ़ी डिमांड थी इस प्लांट की इंडिया में जब कोविड ये चल रहा था. तो मैंने एक ये रिसेंटली एक मैं कहीं जहाँ तो मैंने पिक्चर दिखाई थी, तो वहाँ पर जो कोई बाहर से था, तो वो थ्रिल हो गए, वो उठा कुर्सी से ऊपर, डू यू ग्रो दिस एक्नेशिया पर्पोरिया देयर? आई सेड यस. ही सेड कैन यू सप्लाई अस सर? तो मतलब इसकी डिमांड इतनी है, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है. नेक्स्ट. ये हमने एक किया था एक एक्सपेरिमेंट इस साल, और हमने टर्मरिक लगा दिया था, हल्दी लगा दिया अपनी फील्ड में, और ये आ गया, इसमें अच्छा हो गया. अब राइजोम भी बना हुआ है. नेक्स्ट. दिस इज वर्जीनिया सीलेटा, हमारा जो जिसको जख्मी हयात कहते हैं, इसका क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है हमारे पास. तो हमने अभी जो है ना तकरीबन 4-5 लाख का प्लांट मटेरियल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को दे दिया अभी इसका. दिस इज आवर मेन फोकस, जैसे मैंने भी बता दिया, वी प्रोड्यूस द क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल. नेक्स्ट. दिस एनुलर रेसिमोसा, पुष्कर मूल इसको कहते हैं. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डाबर इसकी ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है डाबर कंपनी में. दे आर उनके लिए भी हम ये प्लांट मटेरियल तैयार, और विल गिव इट टू द फार्मर्स फॉर द कल्टीवेशन. नेक्स्ट. हाँ, ससुरिया कॉस्टस, कोट, इसको कश्मीरी में कोट कहते हैं. इसके लिए एक कोट एक्ट था, जब महाराजा का टाइम था, क्योंकि इसमें कल्टीवेशन, इसकी ट्रेडिंग वगैरह जो है महाराजा के बगैर कोई नहीं कर सकता था.
इट वाज अ प्राइस, उसको काफ़ी ये मतलब पैसा जो है इससे जम्मू कश्मीर को उन दिनों आया करता था। और अब मैंने इस पर देखा कि आप इसको हनी भी निकाल सकते हैं इसकी, हैं, जब आप लगा दीजिए तो इसका मेडिसिनल हनी ये हमने निकाल दिया है, तो इसको आप वो निकाल सकते हैं। दिस इज डिजिटल स्पोर्पुरी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेडिसिनल। आप ठीक है कि खूबसूरत भी बहुत अच्छा लगता है, एंड देन मेडिसिनल प्लांट नहीं, एस्थेटिक वैल्यू भी है इसको, और इसको मेडिसिनल, इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, दिस इज वाइल्ड ऑर्डर बनफशा, बनफशा। अगर ऐसी कहीं ऐसी बुरो गसान कपोस गसान कहीं की हकीम उसने गसान तो वो जवान एंड कोई सो बनफशा है जवान, तो ये होता है, इट्स वेरी गुड डिकंजेस्टेंट ये होता है। दिस इज फायरोकोगम टाटारिकम, ये जो है ना इसको बकवीट जो भी मैं बता रहा था, ये इसका प्लांट है, अपनी फील्ड की पिक्चर है। नेक्स्ट, अभी बता आर्टिमिशिया एनोवा, ये प्लांट है आर्टिमिशिया एनोवा का, जिसका मैं कह रहा था ना इसे 20,000 से 25,000 इसका लीटर जाता है। हमने इसका एसेंशियल ऑयल निकाल दिया, तो वेरी ह्यूज पोटेंशियल। तो इसका भी हमें तकरीबन 70-80,000 प्लांट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को सप्लाई करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, दिस इज टेजिटस माइन्यूटा, ये नॉर्मली वाइल्ड में ग्रो करता है, बुद्रोवा एरिया एंड अदर थिंग्स, लेकिन हमने अपने यहाँ पर कल्टीवेट किया हुआ, तो इसका ऑयल भी तकरीबन 16 से 17,000 लीटर जाता है। तो देयर आर सम फार्मर्स जिनका नाम आ गया है बुद्रोवा से, दे आर कलेक्टिंग वाइल्ड, कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं कोई, तो यहाँ पर हमने कहा कि इसको कल्टीवेट भी कर सकते हैं आप, तो आपको ये जंगलों में तो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी बंजर जो लैंड है वहाँ पर कल्टीवेट कीजिए, वहाँ आपको फायदा होगा। दिस इज कॉल्ड पोडोफाइलम हेक्साइड्रम वनवांगुन, जिसको कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है हमारे लिए। अब इसमें भी काफ़ी ये होता है, इसका सीड बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसको जब ये पक जाता है तो बंदर इसको इसके फ्रूट को खा जाते हैं, तो सीड वगैरह मिलता नहीं है। लेकिन हमारे पास अब इसमें हमने कंजर्व किया है, हमारे पास काफ़ी प्लांटिंग मटेरियल इसका भी अवेलेबल है। इस पेट्रिटिनिया चमोमाइल, जैसे मैं कह रहा था जर्मन चमोमाइल, इसकी चाय, इसकी फ्लावर से चाय बनती है। इसी कशीर मतलब खसा अगर तो उसी कहाँ अगर आज पर सुजमा इसे फक घास है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क होता है। अगर उसको देखेंगे उसमें बदबू आती, फक घास कोई जरूरत है। इसमें जो है ना, जब इसका सूंघ लेते हैं इसमें बड़ी अच्छी स्मेल आ जाती है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन फक एंड स्मेल, हैं? तो लोग इसको अक्सर जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं इसके साथ। मुझे कह रहा था इसको कल एक बंदा कह रहा था इसको कल्टीवेट करने की, मैंने कहा ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये कुछ डिफरेंट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एंजेलिका, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट फ्रॉम दिस, और हमारे पास ये क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है इसका, एंड सीड प्रोडक्शन काफ़ी हुआ है इसका। थैंक यू वेरी मच। Anybody has got any query, आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको ये बताया कि what are the different opportunities in medicinal and aromatic plants, कैसे आप इनको जो है आगे ले सकते हैं। और if somebody wants to start a business in it, there are huge opportunities with these local medicinal plants which are easily available also, easily accessible also, कोई परेशानी नहीं। और कल्टीवेट कोई करना चाहता है, इनको जो है नॉर्मल लैंड की ज़रूरत नहीं, दे कैन बी ग्रोन ऑन एनी मार्जिनल लैंड जिसमें वो फुली डेवलप नहीं है, तो इसको आप कल्टीवेट वहाँ पर कर सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई हैड टू से। Thank you so much, sir, for such a beautiful presentation. It was really beautiful. Sir, we would like to just grace you with a small, you can say, memento, just to remind us that you have shared your experience with us. Sir, please.